السلام علیکم، میں ہوں محمد صغیر اور آپ دیکھ رہے ہیں تجارت نیوز۔ سب سے پہلے میری دنیا بھر میں مقیم پاکستانیوں اور تمام اہل وطن سے گزارش ہے کہ تجارت نیوز کو لائک اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے، کیونکہ تجارت نیوز پہنچاتا ہے آپ تک ایسی خبریں جو شاید کوئی میڈیا آپ کو نہ دے سکے۔ اب آتے ہیں آج کی اہم ترین خبر کی جانب۔ ایک طرف تو حکومت پاکستان کی جانب سے بلند و بانگ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت ترقی کی جانب گامزن ہے، دوسری جانب ملک کے اہم ترین اثاثوں کو گروی رکھا جا رہا ہے۔ سب سے المناک پہلو تو یہ ہے کہ اس نجکاری کے دوران بھی مبینہ طور پر اربوں روپے کی رشوت لی جا رہی ہے۔ تجارت نیوز ان تمام تر حالات پر نہایت باریک بینی سے نظریں جمائے ہوئے ہے اور اس جانب ہونے والی تمام پیش رفت سے اپنے ناظرین کو مکمل طور پر باخبر رکھے گا۔ اب آتے ہیں اسلام آباد ایئرپورٹ کی نجکاری کے اہم ترین معاملے کی جانب۔ مبینہ اطلاعات کے مطابق اربوں روپے کی کرپشن کے بعد 1.25 کروڑ روپے یعنی کہ 125 ارب روپے کے اخراجات سے تعمیر ہونے والے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی نجکاری سول ایویشن اور اب نوزائیدہ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کی اولین ترجیح ہے۔ حکومت، IMF کا ذیلی ادارہ انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن، نجکاری کمیشن، ایویشن ڈویژن اسلام آباد ایئرپورٹ کو ٹھکانے لگانے کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہے ہیں۔ آؤٹ سورسنگ کا پورا معاملہ خفیہ رکھا جا رہا ہے۔ ایئرپورٹ اتھارٹی کے اسٹیک ہولڈرز بھی نجکاری کے اس پورے عمل سے بے خبر ہیں۔ اس ضمن میں تجارت نیوز کو ذرائع نے بتایا کہ 15 اگست 2023 کو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو 15 برس کے لیے آؤٹ سورس کرنے کی منظوری دی گئی تھی۔ اس ضمن میں مزید معلوم ہوا ہے کہ وزارت خزانہ نے اسلام آباد ایئرپورٹ کو آؤٹ سورس کرنے کا پلان منظور کر لیا ہے، جس کے تحت آؤٹ سورسنگ پر تھرڈ پارٹی ایڈوانس کے طور پر $10 کروڑ ادا کرے گی، جبکہ خلاف ورزی کیے جانے پر ایڈوانس پیمنٹ ضبط اور معاہدہ منسوخ کر دیا جائے گا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کے انتظامی امور، فائنینشیل کلوز، ڈیزائن اینڈ کنسٹرکشن تھرڈ پارٹی کی ذمہ داری ہوگی، جبکہ سروس چارجز، ایکسچینج ریٹس اور شاپس رینٹ بھی تھرڈ پارٹی کے ذمہ ہوگا۔ دوسری جانب ایئرپورٹ پر کسٹم، سائٹ سیکورٹی اور امیگریشن سروس سول ایویشن اتھارٹی کے پاس ہوگی۔ تاہم تھرڈ پارٹی کو ایئرپورٹ پر شاپنگ مال اور برانڈ شاپس بنانے کی اجازت دینے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے۔ سول ایویشن حکام نے نجکاری کے لیے خریدار کمپنیوں کو جو تفصیلات فراہم کیں، ان میں رن وے اور دیگر سہولیات کے حوالے سے تفصیل سے بتایا گیا۔ سہولیات کے جائزے میں کہا گیا ہے کہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے رن وے کی تعمیر 2018 میں انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن کے قوانین کے عین مطابق ہوئی اور ایئرپورٹ اب بھی بہترین حالت میں موجود ہے۔ ٹیکس بیس سسٹم کو بھی جدید اور بہترین قرار دیا گیا۔ اپیرن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اپیرن سائٹ پر کسی قسم کے نئے اخراجات کی کوئی ضرورت نہیں اور وہ آلات کے ساتھ بہترین حالت میں ہے۔ ایئرپورٹ کی ٹرمینل بلڈنگ کی بھی بہترین حالت ہے، جہاں ایک وسیع پارکنگ ایریا موجود ہے۔ وہاں ایک کمرشل ایریا بھی بنایا جا سکتا ہے جس سے ہزاروں مسافر استفادہ کریں۔ دوسری جانب پارکنگ اور بیرونی سڑک تک رسائی کے لیے بھی اراضی مختص ہے۔ پارکنگ میں ایگریڈ وہیکل اسکینرز بھی نصب کیے جا سکتے ہیں۔ مرکزی یوٹیلیٹیز
इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बताया गया कि इसमें किसी खराबी की निशानदेही नहीं हुई। 2018 से ऑपरेशनल हैं, जिनमें चिलर प्लांट्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और सेवरेज प्लांट भी अच्छी हालत में हैं। कार्गो सेक्शन मुतालबे के मुताबिक मुसाफिरों को दी जाने वाली सहूलियात के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। ज़ेर इस्तेमाल बेशतर एरिया लैंड लीज मुआहदे के तहत मुख्तलिफ ऑपरेटर्स के पास है, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग में मामूली अपग्रेडेशन की गुंजाइश है। फ्यूल फार्म ऑपरेटर्स के ज़ेर इस्तेमाल हाइड्रेंट्स पाइपलाइंस जो 2007 से 2011 के दौरान तामीर की गई थी बेहतरीन हालत में हैं, जबकि एयरपोर्ट, रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग मज़कूरा सहूलियात के साथ ऑपरेशनल हालत में हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के मुतहर्रिक ट्रैफिक के बारे में बताया गया कि डोमेस्टिक परवाज़ों में PIA की 27, सेरीन एयर का 23, एयर सयाल का 26 और एयर ब्लू का 20% शेयर है। मसरूफ़ तरीन रूट्स में दुबई, जद्दा, रियाद, अबू धाबी और इस्तांबुल के लिए PIA 30% शेयर्स के साथ परवाज़ें ऑपरेट करने में मसरूफ़ है, जबकि गैर मुल्की फ़ज़ाई कंपनियों में सऊदी एयरलाइन 9%, कतर एयरवेज़ 8% और अमारात एयरलाइन मिडल ईस्ट रूट्स पर 6% शेयर के साथ परवाज़ें ऑपरेट कर रही है। जब PIA पर पाबंदी के बाइस अमरीका, यूरोप और UK के लिए कनेक्टिंग परवाज़ें इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बरास्ता मिडिल ईस्ट जाती हैं। बैरून मुल्क परवाज़ों के लिए ज़्यादातर वाइड बॉडी तैयारे बोइंग 777 और एयरबस 330, जबकि डोमेस्टिक परवाज़ों के लिए तंग बॉडी तैयारे जैसे एयरबेस 320 और बोइंग 737 इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एविएशन ज़राए का कहना है कि हुकूमत और सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ख़रीदार कंपनी पर एयरपोर्ट की मजमूई तौर पर 6 जिम्मेदारियां आयद की हैं, जिनमें मुसाफिर और कार्गो ट्रैफिक में कमी का ख़तरा ख़रीदार कंपनी का होगा। अराजी और लैंड साइड असासों की ऑपरेटिंग ख़रीदार कंपनी की होगी, जिसमें अपेरेंट मैनेजमेंट, टर्मिनल मैनेजमेंट, पब्लिक रसाई, कमर्शियल जोन्स, रेस्टोरेंट और पार्किंग शामिल है। एयर साइड सर्विस की जिम्मेदारी भी थर्ड पार्टी की होगी, जिसमें एयर साइड ऑपरेशन और मेंटेनेंस बराए टर्मिनल और अपेरन व मुत्तसिल सहूलियात को बेहतर हालत में रखना शामिल होगा। रेगुलेटेड टैरिफ महंगाई के तनासुब से तब्दील किया जा सकेगा, ताहम इसमें सिविल एविएशन की मदाखलत भी शामिल रहेगी। डिज़ाइन व कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी भी ख़रीदार कंपनी को दी गई है, जिसमें कंस्ट्रक्शन आलात के अपग्रेडेशन, मेंटेनेंस और एयरपोर्ट की गुंजाइश में इजाफे के इक़दामात भी शामिल हैं। एविएशन डिवीज़न के ज़राए मज़ीद बताते हैं कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लिए 8 अक्टूबर को आउटसोर्सिंग की बोली की मंजूरी दी गई। ये बोली तुर्किया की कंपनी की जानिब से दी गई, जो 3 कंपनियों के कंसोर्शियम के साथ बिड में हिस्सा लेने आई थी। तकरीबन पौने 2 माह बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के टेंडर में अहम पेशरफ्त हुई, जिसमें तुर्किया की कंपनी की दस्तावेज़ और बोली को तकनीकी तौर पर मंजूर कर लिया गया, जबकि एयरपोर्ट आउटसोर्सिंग के लिए भी पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स में जमा करवा दी गई है। ज़राए ने बताया कि बोली देने वाली इकलौती कंपनी की दस्तावेज़ की जांच पड़ताल भी कर ली गई है। इस आउटसोर्सिंग के अमल में तेज़ी लाने के लिए पहले एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में पेश किया जाता है और बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद कंपनी को इस्लामाबाद एयरपोर्ट 15 बरस के लिए आउटसोर्सिंग पर हवाले किया जाता है। इस ज़िम्न में मज़ीद मालूम हुआ है कि एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के टेंडर के अमल में वफाकी काबीना से भी मंजूरी ली जाएगी और इस मुतल्लिक तमाम तर तफसीलात से सेक्रेटरी एविएशन
वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग भी देंगे। इत्तलात के मुताबिक तुर्किया कंपनी की बोली को मंजूर करना दरअसल सिविल एविएशन हुकाम के लिए इस वक्त दर्द सर बन गया, जब एक पाकिस्तानी कंपनी जो इथियोपिया की एक कंपनी के साथ आउटसोर्सिंग में दिलचस्पी रखती थी को महज 5 मिनट ताख़ीर से आने पर बोली के अमल से बाहर कर दिया गया। ज़राए ने बताया कि 2 कंपनियों के नुमाइंदे के ताख़ीर से आने पर इन्हें तकनीकी तौर पर आउट कर दिया गया, जिसके बाद तुर्किया की कंपनी की इकलौती बोली को सबसे ज़्यादा करार दिया गया। ज़राए ने बताया कि जिस पाकिस्तानी कंपनी को बोली से बाहर किया गया वो पाकिस्तान में इंटरसिटी बस की मारूफ सर्विस के मालकान की है, जो इथियोपिया की एक बड़ी कंपनी के साथ इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग में दिलचस्पी रखते थे। इन्हें बोली के वक्त क्लियरेंस के नाम पर रोका गया और बोली का वक्त ख़त्म होते ही इन्हें दफ्तर में दाखिल होने की इजाज़त दे दी गई। वहां पहुंचने पर इंकशाफ हुआ कि वो तकनीकी तौर पर आउट कर दिए गए हैं। मुतासरा अफराद ने सिविल एविएशन हुकाम से कहा कि इन्हें बिला वजह 3 घंटे तक रोके रखा गया, ताहम इत्तलात के मुताबिक इनकी बात नहीं सुनी गई। मुतासरा कंपनी ने सेक्रेटरी एविएशन और दीगर हुकाम से मुलाकातें की, इन्हें खतूत लिखे और मामला वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक जा पहुंचा। मुतासरा कंपनी के नुमाइंदे ने मुबैना तौर पर इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग में गैर मुल्की कंपनी को नवाजना चाहती है। उन्होंने इस टेंडर में हिस्सा लेने के लिए 1.5 अरब रुपए जमा करवाए हैं और ठेका हासिल करने के लिए गुज़िश्ता 7 से 8 माह से कोशां हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ मुतलका हुकाम से दरख्वास्त भी की गई और इन्हें बोली के अमल में शामिल किया जाए। उन्होंने बताया कि इस ज़िम्न में अदालत से भी रुजू किया जा चुका है और इन्हें जल्द इंसाफ मिलने की उम्मीद है। इनके मुताबिक हुकूमत मनपसंद कंपनी को नवाजने के लिए ये तमाम तर इक़दाम कर रही है, ताहम इससे आउटसोर्सिंग के अमल की शफाफियत पर सवालात उठ रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक मुतासरा पाकिस्तानी कंपनी की वज़ीर आज़म तक शिकायत पहुँचने पर वज़ीर आज़म दफ्तर की जानिब से शिकायत के अजाले के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी गई है, जो डिप्टी वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, सेक्रेटरी कॉमर्स और चेयरमैन FBR पर मुश्तमिल है। ये कंपनी बोली के मामले पर अपनी तहकीकात मुकम्मल करके मुतासरीन की शिकायत के अजाले की कोशिश करेगी और इस ज़िम्न में इक़दामात का आगाज़ कर दिया गया है। ये थी आज की अहम तरीन खबर जिससे तिजारत न्यूज़ ने अपने नाज़रीन को आगाह किया। अब दीजिए अपने मेज़बान मोहम्मद सगीर को इजाज़त, मिलते हैं आइंदा प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए तिजारत न्यूज़। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करना ना भूलें।